हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। एंड हम लोग आज कर रहे हैं लास्ट लेक्चर ऑफ द लास्ट थियोरेटिकल लेक्चर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बेसिकली. So we will be learning about some electroplating, magnetic effect, earthing and the dangers of electricity and the छोटी मोटी जो बातें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की वो. ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक पढ़ने के बाद हम छोटी मोटी बातें भी पढ़ेंगे. ठीक है, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होने चाहिए, ये चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. एंड वी आर ट्राइंग आर बेस्ट कि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, राइट, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपियाड्स एज वेल एज द स्कूल एग्जामिनेशन. सो वी आर ट्राइंग आर बेस्ट कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं, राइट. सभी चीज़ हम लोग अच्छे से पढ़े, उसको अंडरस्टैंड करें, जो भी नीडेड इन्फॉर्मेशन है उसे ले. दैट इज़ आवर मेन गोल, right? So we deal with all the Olympiads, right? All the school Olympiads we can say, not the school Olympiad, but we can say the 6, 7, 8, 9, 10. इन सब के जितने भी Olympiads हैं उन सब से हम डील करते हैं, उनके लिए हम स्टडी करते हैं along with the school examinations, right? 9, 10 के लिए हम NTC, NSCJS, PRMO में डील करते हैं. So you all know that what we do study for. Right? अब देखो, if you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You can write our code TTB08 in the search box of the Telegram app. अगर आप TTB08 लिखेंगे तो वहाँ पे हमारा चैनल 8th क्लास के लिए अपीयर हो जाएगा. Join that channel and then you can access all the DPPs and study material. Alright, so that is the main thing जो कि हम आपको बता रहे हैं. Alright, चलिए अब देखिए, ये जो टीम है हमारी वो बहुत ही बेहतरीन टीम है. And this team is going to help you a lot in your examination. Basically we are preparing for the science and the mathematics olympiads. तो उसके अंदर definitely science में physics, chemistry, bio and maths में maths and math, ये 5 subjects ऐसे हैं जिसमें हम deal कर रहे हैं. We are preparing you for that. We are providing lectures for that. And we are helping you in achieving all your goals you have set for yourself, right? That is the main thing we have taken towards you all. That is the main thing, right? Now let's हम लोग start करते हैं. Next thing आपको जो मुझे बताना चाहिए वो मैं आपको बता ही देती हूँ. ठीक है, what you can do is you can go on this website www.talkingtextbooks.in. अगर आप interested हैं हमारे साथ जुड़ने में, हमारे साथ प्रिपरेशन करने में, इफ़ यू आर रियली थिंक दैट वी कैन प्रिपेयर यू फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज द ओलंपियाड्स, you can stay with us and stick with us and you can join us, right? How? Let me tell you. You have to go on the website first and then you will be getting 2 type of packages. The number 1 is the full package, so you can join the full package. You will be getting the study material, the video and the live classes, homework submission, bi-weekly quizzes, periodic test papers. So you will be getting all such things, right? तो ये आपको मिलेगी. So you should join it, right? तभी आपको जो है हमारा connection आपको पता चलेगा तब. Alright, and if you are only interested in test series, then you can definitely join that also. ठीक है, आप इसे भी join कर सकते हैं. In the test series, you will be getting the bi-weekly quizzes, periodic test papers, along with the video and live classes. So basically, you can join both of them. You can buy them, and if you are really buying them, then make sure that you remember my code SIVA Live. And if you remember this code, you will be getting a 30% discount. And obviously, अगर आपको जो 30% डिस्काउंट मिल रहा है, ऑब्वियसली सभी बच्चे खुश हो जाते हैं इसको लेकर, तो राइट, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग व्हाट टू से एंड व्हाट टू आस्क अबाउट दीज थिंग्स, राइट, हाउ दे आर गोना हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी, then you can call us. And the number is 919549041111. So that's it, all right. And you make sure that you share all the lectures with your friends also, so that your friends can also be benefited from them, because these are the free video lectures, free for everyone. So basically anybody can watch them and study from them. Make sure you do that so that your friends can also study from this. All right, चलो अभी हम आगे चलते हैं. And the promise section, all right. So this is the promise section. You have to promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. That is the good thing, all right. अब हम देखते हैं हमारा लेक्चर नंबर 5. So we are going to study today the lecture number 5, that is the magnetic effect of electric current. Basically सिर्फ magnetic effect नहीं देखने वाले हैं, पर बाकी और चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि electroplating. We are going to study about the electroplating, magnetic effect of electric current, earthing, danger of electricity, safety measures in using electricity, and then we will be talking about electroscope. Electroscope is a very nice device.
ऑलराइट, आई विल बी टेलिंग यू कैसे उसे यूज करते हैं और वो किस काम आती है, ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट, बट लेट्स सी व्हाट इज देयर बिफोर इलेक्ट्रोस्कोप, राइट। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। तो मैंने लास्ट लेक्चर में जब हम लोग देख रहे थे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर व्हाट आई टोल्ड यू द वेरियस ऑप्शंस एंड वेरियस थिंग कि भाई एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, केटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं। सो आई टोल्ड यू ऑल ऑफ दैट, राइट। एंड अब आप मुझे ये बता सकते हैं ऑब्वियसली कि ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ये किसकी हेल्प से होती है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, राइट। तो देखो ये जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, उसी का एज एन एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू स्टडी दी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कुछ भी नहीं होता सिवाय एक मेटल के ऊपर हम किसी और मतलब कोई दूसरे टाइप का मेटल उसका एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, उसका एक यू कैन से अ लिटिल बिट ऑफ लेयर हम उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑलराइट, तो व्हाट इज इट, this is the use of the chemical effect of electric current, and during electroplating the metal surface of a given particle is coated with a thin layer of superior metal with the help of the electric current. That is the main thing, all right, कि हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हुए जो एक मेटल है उसके ऊपर किसी और मेटल का लेयर चढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है ना वो बहुत जगह यूज आते हैं, टायर्स के ऊपर यूज आते हैं, जो कार्स के टायर्स होते हैं उनके ऊपर अलग मेटल का लेयर होता है, ठीक है, कार के हैंडल्स पे अलग मेटल का लेयर होता है, ठीक है, उसके अलावा जो कार की बॉडी होती है उस पर भी होता है, जो यू कैन से ज्वेलरीज होती हैं, ठीक है, उन पे भी, जैसे गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी, उन पे होता है, बहुत सारे यूटेंसिल्स पे होता है, राइट, स्टेनलेस स्टील के ऊपर कॉपर का लेयर चढ़ा देते हैं। ऐसे न जाने कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आप ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ऑप्शन, ये एग्जाम्पल, ये फिनोमेना यू कैन वॉच दैट, राइट, एंड दैट इज ऑल्सो अ नाइस थिंग बिकॉज इट इज़ सो कॉमन इन आवर लाइफ्स कि हमें पता भी नहीं चलता ऐसा है कि नहीं है। Alright, so whenever you find a layer is getting bit off from any metal, then obviously you can understand that this is made by the electroplating. Alright, चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं एंड हम देखते हैं किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट पे कॉपर की एक हल्की सी लेयर को चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें तीन चीज़ें बताई थी, हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, पहली क्या, एनोड चाहिए, कैथोड चाहिए और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो कैथोड होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, और जो एनोड होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है। जो कैथोड होता है, राइट, वो नेगेटिवली चार्ज होता है और उसके ऊपर हम वो ऑब्जेक्ट को रख देते हैं जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें लेयर चढ़ानी होती है। लेट्स से सपोज अ स्पून, तो जैसे अगर हमें स्पून के ऊपर जो है लेयर चढ़ानी होगी तो हम स्पून को रख देंगे कहाँ पर, जो है कैथोड पे, राइट, एंड देन एनोड पे हम क्या करेंगे, उस मेटल का एक स्ट्रिप ले लेंगे जिस मेटल का लेयर हमको चढ़ाना है, राइट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब देखो यहाँ पे जब हम कॉपर और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा, कॉपर का सोल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि हम कॉपर का एक लेयर चढ़ाने की कोशिश करें, तो जिस भी मेटल का हम लेयर चढ़ाते हैं उसी मेटल का आपको कोई सॉल्ट सोल्यूशन लेना होता है, ठीक है। तो जैसे अभी हम कॉपर का लेयर चढ़ा रहे हैं, तो अगर हम कॉपर का लेयर चढ़ा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट को यूज़ करना है, ठीक है, व्हाट वी आर यूजिंग, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का ये ब्लू कलर होता है, ठीक है, रिमेंबर इट, ये पता चलना चाहिए तुम्हें। अब देखो कॉपर सल्फेट जब क्या होगा, कॉपर के एटम्स जो हैं स्पून पे जाके स्टिक होने लगेंगे, उस टाइम पे क्या होगा, एक्चुअली में कॉपर सल्फेट टूट जाएगा, ठीक है, कॉपर की जो स्ट्रिप होती है उसमें से कॉपर के एटम्स निकलने लगेंगे, और क्योंकि कॉपर की जो एटम्स हैं वो कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज, तो वो क्या होंगे, कैटायंस। तो देखो पॉजिटिवली चार्ज Cu2+ आयंस वहाँ पे निकलने लगेंगे, कहाँ से, कॉपर की स्ट्रिप से, ऑलराइट। जैसे ये Cu2+ आयंस हैं वो क्या करेंगे, सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे कैथोड की तरफ, ऑलराइट। तो यहाँ पे मेन फंक्शन यही है, वो क्या,
कि यहाँ पे ब्रेकिंग हो रहा है, आइदर कॉपर सल्फेट का ब्रेकिंग हो रहा है, ठीक है, कॉपर के जो स्ट्रिप है उसके अंदर से कॉटन के जो एटम्स हैं वो निकलते हैं, right? Atoms means you can say cations because they are positively charged, right? And they move from one place to another carrying the current also, right? And then this electroplating process is going on, ठीक है, इस तरीके से होती है. अगर हम एनायंस की बात करें तो एनायंस में आप देख सकते हो हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस और SO4 2 माइनस, क्योंकि H2SO4 टूटेगा तो यू विल बी गेटिंग SO4 2 माइनस, राइट? तो SO4 2 माइनस आपको मिलेगा एनायन नेगेटिवली चार्ज्ड, OH माइनस मिलेगा वाटर में क्योंकि हम इसको डाइल्यूट करके डालेंगे, ठीक है, हम इसे कंसंट्रेटेड यूज नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई OH माइनस आयन एनायंस, राइट? इसी तरीके से कैटायंस में Cu2 प्लस और H प्लस आयंस. सो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो आयंस और कैटायंस हैं, ये सारे के सारे अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है. अब देखो, जस्ट अ सेकेंड, इट इज नॉट इवन वर्किंग. तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे मेनली, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है, हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, क्या, की, ठीक है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया है की, और हम लोगों ने लिया है एक इम्प्योर कॉपर का रॉड, कॉपर का स्ट्रिप, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है. तो हमने एक इम्प्योर कॉपर का स्ट्रिप जो है लिया है, हमने उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया है, दैट मीन्स इट बिकम्स एन एनोड. और दूसरी तरफ जो की है जिसको हमें कॉपर प्लेटेड बनाना है, दैट इज टेकन एज द की, और ये जो की है एक्चुअली में ये क्या है, इसको हमें क्योंकि कॉपर का लेयर चढ़ाना है तो इट शुड बी कनेक्टेड विद द नेगेटिव, सो इट इज टेकन एज द कैथोड, राइट? तो हमने यहाँ पे मेन काम क्या किया है, की को बना दिया है एनोड, कैथोड, और जो हमारा कॉपर का स्ट्रिप है वो हमने बना दिया एनोड, एंड वी हैव टेकन अ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज दैट, कॉपर सल्फेट, ऑलराइट. तो यहाँ पे मेन काम क्या होगा, यहाँ पे मेन काम ये होगा कि इस कॉपर में से, ठीक है, इस कॉपर में से Cu2 प्लस आयंस बाहर आएंगे, राइट? जैसे ही वो बाहर आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो क्या है, कैटायंस हैं, वो पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस हैं, तो वो किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगे ऑब्वियसली, राइट? और वो वहाँ जाते ही क्या कर लेंगे, अपने आप को न्यूट्रल कर लेंगे, जिसकी वजह से वो कॉपर का एक एटम बन जाएगा एंड दे विल स्टिक टू दैट की, ऑलराइट. तो यहाँ से निकलते हैं एंड दे विल गेट टू दैट, दे गेट डिपॉजिटेड ऑन दिस, ऑलराइट. जस्ट अ सेकेंड, ये फिर से चेंज जो है हो गया है. अभी तक हम यहाँ पहुँचे नहीं हैं, राइट? हम लोग अभी यहीं पर ही हैं. तो देखो यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, अभी कॉपर के जो आयंस हैं वो निकलते हैं किस में से, जो इलेक्ट्रोड में से हैं, या कॉपर के आयंस निकलते हैं, पॉजिटिव आयंस, राइट? दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड. So and they will come into the copper sulfate solution, then they will move up to the key, they will stick to that key, make themselves neutral and stick to that. धीरे धीरे ऐसे करते करते सारे के सारे जो आयंस हैं, कॉपर के आयंस, वो सारे के सारे किसके ऊपर, की के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, ठीक है, दे विल गेट कलेक्टेड ऑन दैट की. अब ध्यान से सुनो, ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर आयंस होंगे, नेगेटिव आयंस, सल्फेट आयंस, SO4 2 माइनस आयंस होगा, OH माइनस आयंस होंगे, दे विल रिमेन एज इट इज, वो यहीं पर ही रिमेन रहेंगे, ठीक है, वो कहीं नहीं जाएंगे, ऑलराइट. सो दे विल स्टे देयर ऑलरेडी, ठीक है. तो आप लोग इसको फटाफट से नोट करो कि कैथोड पे पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉपर आयंस हैं, वो क्या करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस को गेन करके कॉपर के एटम्स बना लेंगे एंड दे विल स्टिक टू दैट आयरन ऑब्जेक्ट, दैट इज आवर की, ठीक है. तो यहाँ पे आप इसको फटाफट से नोट करो धीरे धीरे, क्योंकि इसका पूरा लेयर जो है कॉपर का वो चढ़ता चला जाएगा, ऑलराइट.
ऑलराइट, तो देखो सारे के सारे कॉपर एटम्स जो हैं वो इस रॉड में से निकलकर दे विल बिकम आयंस एंड दे विल कलेक्टेड टूवर्ड्स दी what towards the cathode because it is negatively charged and they become neutral by gaining the electrons, right, and they get deposited on that iron object. ये electroplating का process पूरा होते रहता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये प्रोसेस हम लोगों ने अभी पूरा लिखा। अब हम आगे का प्रोसेस भी लिखते हैं। व्हाट इज दैट कि भाई ये जो सल्फेट आयंस होते हैं और जो ये दूसरे आयंस होते हैं, ये जो आयंस हैं वो एक्चुअली में एज इट इज रहते हैं, ठीक है, दे डू नॉट न्यूट्रलाइज, ठीक है, वो क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं। अब देखो ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं जो मैंने तुम्हें बताया था H+ आयन, वो जो है न्यूट्रलाइज नहीं होते, ठीक है, वो डिस्चार्ज नहीं होते। अब देखो हमें पता चला कैथोड पे क्या हो रहा है, ठीक है, हमें क्या पता चला कैथोड पे क्या हो रहा है, बट हमें ये भी देखना है कि एनोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे क्या हो रहा है, कोई भी नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन, चाहे वो OH- हो चाहे वो SO4 हो, वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। एनोड पे वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो अपना जो चार्ज है भले ही नेगेटिव हो, ठीक है, लेकिन जो चार्ज है वो लूज नहीं हो रहा है, ठीक है, दे आर नॉट गेटिंग दैट, बल्कि जो मेन कॉपर आयंस है ना वो सारे के सारे कॉपर एटम्स जो हैं कॉपर प्लेट से वो क्या कर रहे हैं, अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते जा रहे हैं। they are coming out in the form of ions, positive ions, and they get collected on this key, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कई मेटल्स का होता है, सिल्वर का भी होता है, सिल्वर का लेयर चढ़ाते हैं, गोल्ड का लेयर चढ़ाते हैं। सो वी ऑलवेज यूज इलेक्ट्रोलाइट एज द मेन सोल्यूशन ऑफ दैट एटम ओनली। तो अगर आप सिल्वर का क्या कर रहे हो, लेयर चढ़ा रहे हो, ठीक है, सिल्वर का लेयर चढ़ा रहे हो, तो आपको कोई सिल्वर का सोल्यूशन लेना होगा, जैसे AgNO3 आप इसको ले सकते हैं। अगर आप गोल्ड का लेयर चढ़ा रहे हो तो आपको गोल्ड का कोई ना कोई सोल्यूशन लेना पड़ेगा, सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। मेक श्योर यू नोट दिस डाउन। एनोड पे क्या हो रहा है ये भी हमें लिखना होगा, ठीक है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं आगे कि इन सब का यूजेस क्या क्या होता है, ठीक है। एज यू कैन सी द कार हैंडल, कितना शाइनी कार हैंडल है, ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से ही ऐसा हुआ है। दिस इज सिल्वर प्लेटेड रिंग, दिस इज गोल्ड प्लेटेड रिंग, ऐसे न जाने कितने सारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एग्जाम्पल्स आपको रियल लाइफ में मिलेंगे। लेकिन सिर्फ लेयर चढ़ाने का इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज नहीं होता, कुछ और भी यूजेस होते हैं, जैसे कि किसी एक इम्प्योरिटी को, ठीक है, हटाना। कोई एक यू कैन से, आप ये बात जानते हो कि जितने भी मेटल्स आते हैं वो धरती के अंदर से आते हैं, ओर्स में से आते हैं, राइट। जैसे ही वो सारे के सारे मेटल्स आते हैं वो कैसे फॉर्म में होते हैं, इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। टू मेक देम प्योर वी यूज दिस मेथड। ऑलराइट, देखो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स फ्रॉम इम्प्योर मेटल्स। तो इम्प्योरिटी को हटाने के लिए वी यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑल्सो, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें एल्यूमिनियम मेटल को उसके ओर में से एक्सट्रैक्ट करना है, देन ऑल्सो वी यूज दिस, ऑलराइट, देन ऑल्सो वी यूज दिस एंड वी मेक श्योर दैट दिस हैपेंस। तो आप लोग खुद से इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो है देख सकते हैं एग्जाम्पल्स, वो किस तरीके के एग्जाम्पल्स वहाँ फॉलो अप हो रहे हैं, ठीक है, किस किस जगह में यूज कर रहे हैं। जस्ट नॉट अबाउट लेयरिंग, सिर्फ लेयरिंग की बात नहीं हो रही है, इवन अलग अलग चीजें भी होती हैं, जैसे कि अपने मेटल्स को इम्प्योर करना, राइट, इम्प्योरिटीज को हटाना, इम्प्योर नहीं, उनको इम्प्योरिटीज जो उसमें ऑलरेडी हैं उनको हटाना, मेक दैम प्योर, ये हमारा मेन काम होता है, ठीक है। उसके अलावा भी एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो ये प्रोसेस हम कई जगह यूज़ करते हैं। दिस इज जस्ट अ प्रोसेस बाय सेपरेटिंग आउट, मतलब मेन प्रोसेस जो है वो ये है कि मॉलिक्यूल्स का ब्रेक हो रहा है एंड दे आर मूविंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू द अनदर, राइट, आयंस की फॉर्म में। ये हम यूज कई प्रोसेस में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यार देखो, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, हमें बस इतना सा पता है कि जब ये क्या होता है, करंट एक वायर के अंदर से जाता है, जब जब एक करंट वायर के अंदर से जाता है तो क्या होता है,
वायर के चारों तरफ यू विल बी गेटिंग मैग्नेटिक इफेक्ट, यू विल बी गेटिंग सम मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चलेगी एक्चुअली में वो क्या होगी, जस्ट अराउंड दी कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। जब जब करंट फ्लो होगा तब तब आपको ये मैग्नेटिक इफेक्ट देखने मिलेगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट वैसे तो कई जगह यूज होता है, बट इलेक्ट्रिक बेल में बहुत अच्छे से यूज होता है। उसके अलावा भी देखो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक मोटर्स, लाउड स्पीकर्स, टॉयज, न जाने क्या क्या, ठीक है। तो मतलब ये जो है वो बहुत ज़्यादा जगह में यूज होता है। इफेक्ट है सिर्फ करंट का, राइट, करंट फ्लो हो रहा है एंड वी गेट मैग्नेटिक फील्ड, बस यही इफेक्ट है उसका। जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का है उसके अलावा भी जो हम लोग देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है कि अर्थिंग हमारा होना चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि देखो जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट हमारे घर में होता है, ठीक है, और कभी एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट आ जाए, सो इन दैट केस हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को सेफ रख सके हम लोग। वैसे हम फ्यूज भी यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो गुड थिंग, एंड अर्थिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा जितना भी चार्ज अगर आ जाता है तो वो सारा का सारा कहाँ चला जाए, अर्थ में चला जाए, दैट इज व्हाट कॉल दी अर्थिंग। आपने अपने घर में देखा होगा जो सॉकेट्स होते हैं उसमें सबसे ऊपर वाला जो वायर होता है, मतलब यू कैन से सबसे ऊपर वाला जो पोर्ट होता है, दैट इज ऑफ बिग साइज, है ना। ये क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये जो होल है वो भी बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? बिकॉज दिस इज ऑफ द अर्थिंग। ये जो सबसे ऊपर वाला होता है ना, ये किसका होता है, अर्थिंग का होता है। इफ यू हैव प्रॉपर अर्थिंग इन योर हाउस देन देयर इज नो नीड ऑफ एनी डेंजर, ठीक है, वहाँ पे कोई डेंजर नहीं हो सकता, मेनली बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो देखना क्या है कि अगर कहीं से करंट का लीकेज हो जाए किसी भी जगह में, जैसे कई बार होता है जो कूलर्स होते हैं, मेटालिक बॉडी वाले कूलर्स होते हैं, ठीक है, जो पुराने ज़माने में आते थे, वैसे अभी भी आते हैं। तो जो मेटालिक बॉडी के कूलर्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसकी मेटल्स में करंट चला जाता है, ठीक है। अब उसको कोई भी टच करेगा तो उसको करंट लग जाएगा, और इट इज़ सो कॉमन, राइट, इट इज़ सो कॉमन। सो मेक श्योर कि भाई वो प्रोसेस नहीं हो, किसी को करंट नहीं लगे, एक्स्ट्रा करंट अर्थ में चला जाए, इसको श्योर करने के लिए वी यूज़ दी अर्थिंग। ऑलराइट, इसको श्योर करने के लिए बेसिकली ये हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को बचाता है, हमें बचाता है इलेक्ट्रिक शॉक से, दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो तुम क्या करो, फटाफट से नोट कर लो। Alright, now let's discuss some of the danger of the electricity, मतलब how electricity can be a danger for you, so that you make sure you save yourself from that, ठीक है। So the first one is कि गलती से भी अगर इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारे दिल में से निकल जाए, ठीक है, गलती से भी अगर ऐसा हो जाता है तो what happens, आपके जो हार्ट के मसल्स हैं, ठीक है, आपकी जो वेन्स है जिनके थ्रू जो है ब्लड जा रहा है फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है, पूरे बॉडी में से हार्ट में आ रहा है, हार्ट में से पूरे बॉडी में जा रहा है, वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ड्यू टू विच व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट व्हाट हैपेंस, डेथ अकर्स, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, राइट। तो इफ एनी हाउ, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, राइट। बट अगर कभी गलती से ऐसा हो जाता है, कभी भी हार्ट में से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जाती है, अगर पास ऑन हो जाती है, सो the muscles, the veins contract and there can occur the death of the person. So make sure that doesn't happen to you, ठीक है।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है किसी भी पर्सन को, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसके जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी, क्योंकि हमारी सेल से बनी होती है राइट, वो सारे सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, बर्न होने लगते हैं राइट, एंड फाइनली बहुत ज़्यादा नुकसान बॉडी को पहुंचता है। तो वी हैव टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक ऑल्सो राइट। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको कभी भी किसी भी जगह पे वेट प्लेसेस पे राइट, स्पेशली वेट प्लेसेस पे इलेक्ट्रिकल की चीज़ों से डील नहीं करना है। एंड इनवर्सली अगर हम बोले तो आपको गीले हाथों से, वेट हैंड से, किसी भी गीले मतलब उसके आसपास का एरिया शुड नॉट बी वेट, बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड अगर आपके हाथ में इफ यू हैव वेट हैंड्स और if there is something wet area in which you are handling those electrical things, then there is a huge chance that you get an electric shock. So make sure you do not do that. Alright, next देखो, अगर आपके घर में लूज कनेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, खराब और डिफेक्टिव सॉकेट्स आ जाते हैं, प्लग्स आ जाते हैं, so they can be turned into dangerous things, right? Because they can definitely make sure कि भाई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, right? उसके अलावा न जाने कितनी सारी चीज़ें हो सकती है। So we need to make sure that ये जो चीज़ें हैं लूज कनेक्शंस के, खराब सॉकेट्स में, वी इंश्योर दैट हम जो भी चीज़ यूज़ करें वो प्रॉपर रेटिंग का होना चाहिए। और राइट, उसके अलावा अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स आप लोग ले सकते हैं वो क्या, कि आप जो भी वायर्स यूज़ कर रहे हैं अपने घर में वो सारे के सारे प्रॉपरली इंसुलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। यू मेक श्योर दैट दे आर प्रॉपरली इंसुलेटेड। क्वालिटी वायर्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो कि इसका जो इंसुलेशन है वो बहुत ही लो क्वालिटी का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। The insulation must be proper and that is of high quality also, ठीक है। उसके अलावा जो भी डैमेज डिफेक्टिव प्लग्स अगर आपके घर में है, मेक श्योर यू चेंज दैम, रिप्लेस दैम, ऑल राइट, सो यू डू दैट, मेक श्योर। उसके अलावा आप देख सकते हैं जितने भी कनेक्शंस आप स्विच में बना रहे हैं और प्लग्स में लगा रहे हैं वो सारे के सारे कनेक्शंस लूज नहीं होने चाहिए, दे शुड बी प्रॉपर, ऑल राइट। सो और उसके अलावा भी वो प्रॉपर इंसुलेटिंग मटेरियल के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम स्विच ऑन कर रहे हो और उसी में तुम्हें करंट लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। एक्सटेंशन कॉर्ड जो आप यूज़ करते हो, एक्सटेंशन कॉर्ड्स मीन्स जब एक प्लग के अंदर हम एक एक्सटेंशन कॉर्ड लगाते हैं जिसके अंदर हम बहुत सारे मल्टी प्लग्स लगा सकते हैं। सो बेसिकली आप एक प्लग की जगह पर यू आर कनेक्टिंग मोर and then there will be load on the electric current, right? That generates a situation where the electric shocks and overloading occurs, right? तो basically you should not do that. Make sure extension rod जो है, extension cord जो आप use कर रहे हैं, that is made up of proper rating, right? ये चीज़ आपको mention करनी है, ध्यान रखना है। Switch और plugs जो हैं गीले हाथों से बिल्कुल नहीं छूने हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कहीं पे भी आपके घर में शॉर्ट सर्किट जैसी कोई भी घटना कहीं पर भी हो जाती है, पहला चीज आपके दिमाग में आना चाहिए वो क्या, कि आप पे सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करके आए, ठीक है। कहीं पर भी अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो आपके दिमाग में फर्स्ट थिंग यही आना चाहिए, स्विच ऑफ द मेन स्विच, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आप बच सकते हैं और आप एक स्मार्ट स्टूडेंट भी कहलाएंगे, बिकॉज जिसको ये बात पता होती है कि भाई अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉक हो रहा है, ठीक है, या फिर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक जो है शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहीं पर भी थोड़ी सी भी चिंगारी आपको नज़र आ रही है, मेक श्योर यू ऑफ द मेन स्विच, राइट। फिर देखो हमेशा सेफ्टी फ्यूज़ आपको यूज़ करना है अगर आप खुद को और अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाना चाहते हैं तो। इसके अलावा सारे के सारे अप्लायंसेस शुड बी प्रॉपरली अर्थ, बिल्कुल भी उसमें आपको कोताही नहीं बरतनी है, ऑलराइट। कभी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ों को आप चेंज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं या फिर उसमें कुछ करेक्शंस कर रहे हैं, इफ़ यू आर हैंडलिंग दैम, मेक श्योर यू वेयर द रबर सोल शूज़, ऑलराइट। और अगर आप रबर सोल शूज़ नहीं पहन पा रहे हैं तो आप रबर की चप्पल्स भी पहन सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बिकॉज वी नो दैट रबर इज़ एन इंसुलेशन, राइट। तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। एंड अगर जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन आया है और वो ये काम नहीं कर रहा है तो आप उसको बोलो कि भाई वो रबर के शूज़ पहने या फिर रबर के चप्पल्स पहने, ठीक है। उसके अलावा देखो आपको क्या करना है, आपके जो सॉकेट है, जो आपके स्विच बोर्ड में सॉकेट्स लगे होते हैं, उन सॉकेट्स के अंदर मेटालिक पार्ट होता है, नेवर एवर टच दैट, ठीक है, कभी नहीं छूना है उन्हें। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है, बट दे आर वेरी मच यूजफुल इफ़ यू फॉलो दैम प्रॉपरली, ठीक है। दीज कैन सेव यू फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स, इलेक्ट्रिक सर्किट, शॉर्ट सर्किट जो होता है ओवरलोडिंग से बचा सकते हैं। सो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बाय दीज थिंग्स यू कैन सेव योर सेल्फ एंड सेव योर फैमिलीज टू, राइट, दैट इज़ द थिंग।
अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, दैट इज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप सबसे पहले होता क्या है ये मैं बता देती हूँ। इलेक्ट्रोस्कोप एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस होता है जिस डिवाइस की हेल्प से यू कैन मेजर द चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा डिवाइस जिससे आप मेजर कर सकते हो कि भाई इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है। हमने चार्जिंग पढ़ा है, भाई चार्ज कैसे करते हैं हमें ये बात पता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कितना चार्ज है, ये जानना चाहते हैं। सो दिस इलेक्ट्रोस्कोप इज गोइंग टू हेल्प अस बाय दैट। अब देखो क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रोस्कोप का। ठीक है, ये हमने है जो बनाया है दैट इज गोल्ड लीफ। अब गोल्ड लीफ क्यों? बिकॉज इसके अंदर जो लीव्स होती हैं, जो 2 प्लेट्स होती है, दे आर मेड अप ऑफ गोल्ड, दैट्स व्हाई दिस इज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज, कितना चार्ज है उसको डिटेक्ट करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक डिस्क टू विच अ मेटल रॉड इज अटैच्ड। अब देखो ये है एक मेटालिक डिस्क, एज यू कैन सी ओवर है ना, ये आप मेटालिक डिस्क देख सकते हो। और इस मेटालिक डिस्क से एक मेटल की रॉड अंदर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज द मेटल की रॉड। इस मेटल की रॉड पे ये येलो कलर का आपको दिख रहा है ना, दीज आर एक्चुअली द गोल्ड लीफ। इट इज नॉट अ लीफ बट इट इज अ स्ट्रिप। ठीक है, तो हम इसको लीफ कह देते हैं। अब देखो द मेटल रॉड पासेस इनटू अ बेल जार। ये जो बेल जार है इसके अंदर मेटल रॉड जा रहा है, टाइटली फिटेड रबर स्टॉपर के थ्रू जा रहा है। ठीक है, दिस इज अ रबर स्टॉपर और यहाँ के इसके थ्रू अंदर जा रहा है मेटल की रॉड। एट द बॉटम ऑफ द मेटल रॉड आर माउंटेड 2 थिन स्ट्रिप्स ऑफ मेटल। कोई भी मेटल, वैसे हम यहाँ गोल्ड लीफ की बात कर रहे हैं, सो वी आर यूजिंग द गोल्ड। ठीक है, तो ये गोल्ड की 2 आपको मिलेंगी स्ट्रिप्स जो कि वहां पर टाई अप होती है। ठीक है, अब देखो दीज कैन बी मेड अप ऑफ कॉपर, ब्रास, गोल्ड। कॉपर की हो सकती है, ब्रास की हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है। अगर हम गोल्ड की यूज कर रहे हैं तो हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज कर रहे हैं। ठीक है, the bell jar rests on the wooden base. The sides of the bell jar are attached with a thin foil. The amount of charge present in the body is measured by the amount of divergence of the leaves. Main thing यहाँ पर आती है, how to measure that? कैसे आप measure करोगे? देखो कैसे करोगे। कोई भी चार्ज बॉडी है, ठीक है, उस चार्ज बॉडी को आप क्या करोगे, इस मेटालिक डिस्क के पास लेके जाओगे, उसको टच करवा दोगे। जैसे ही आप टच करवाओगे वैसे ही क्या होगा, सारा का सारा चार्ज जो है वो इसमें चला जाएगा। राइट, जैसे ही इसके अंदर चार्ज गया, चार्ज जाते जाते, बिकॉज दे आर कंडक्टर्स, दे आर मेटालिक, राइट, चार्ज जाते जाते यहाँ पे फॉइल्स में जो यहाँ पे लीव्स हैं उनको मिलेगा। ठीक है, अब ये जो 2 मेटालिक लीव्स हैं ये कुछ इस तरीके से हैं। इफ these two metallic leaf get the same charge, they will repel and they will diverge। ठीक है, तो देखो अगर इन 2 लीव्स को अगर सेम चार्ज मिलेगा, डेफिनेटली सेम ही मिल रहा है क्योंकि हम ऊपर से एक ही चार्ज दे रहे हैं, राइट, तो क्या हो रहा है, उनको सेम चार्ज मिलने से क्या हो रहा है, दे गेट डाइवर्ज। तो वो डाइवर्ज हो जाती है, वो क्या करती है, क्योंकि दोनों सेम चार्ज पे है तो रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, तो वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो कितना डाइवर्जेंस है वो इस स्केल से हम लोग मेजर कर लेते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट इस स्केल से मेजर करने के बाद वी कैन कैलकुलेट वेयर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द चार्ज बॉडी। ये हम लोग ऐसा मेंशन करते हैं। ठीक है, चलो अभी जो है तुम इसे नोट करो बिकॉज दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल यू नीड टू नो दैट। ठीक है, अब देखो इसके अलावा कुछ अच्छी बातें मैं आपको बताती हूँ, ऐड टू योर नॉलेज है, इसका मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, पहला फैक्ट्स, डायोड। व्हाट इज़ अ डायोड? डायोड एक बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, बहुत छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, used for a variety of purposes. It is being used in traffic signal light because it consumes less electricity and had longer life than bulbs and CFLs. So यहाँ पे आप एक बात ध्यान में दे सकते हैं कि जो बल्ब्स होते हैं, CFLs होते हैं, उनकी जगह पे डायोड्स यूज़ करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, रिमेंबर। तो जो ट्रैफिक लाइट्स होती है वहाँ पे आपको ये लाइट एमिटिंग डायोड मिल सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे यूज़ हो सकता है। क्यों यूज़ होते हैं? बिकॉज दे कंज्यूम द लेस इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली हम लोगों ने लेड के बारे में जब स्टडी किया था तो हमने देख लिया था लो वोल्टेज पे भी ग्लो करते हैं, राइट। तो बेसिकली कम से कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके ये ग्लो कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर यूजिंग इन अ वेरी इकोनॉमिकल थिंग, राइट। तो मतलब हमें बहुत ही फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो आपको पता होना चाहिए, एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज़ द गुड थिंग जो आपको पता होना चाहिए। सचमुच में एयर कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगेगा कि एयर कंडक्ट कर सकती है तो सोचो अगर एयर कंडक्ट करती, अगर ऐसा प्रोसेस होता
तो सोचो कि आपके बाहर जो इलेक्ट्रिकल वायर्स लगे हुए हैं, पोल टू पोल जो कनेक्टेड हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है एयर के थ्रू होता हुआ आपको लग जाता है और आप शॉक लग के ऐसे ही मर जाते हैं। इसी वजह से आपको ये पता होना चाहिए दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन 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 कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जब एयर जो है कंडक्टर बन जाती है, जैसे लाइटनिंग टाइम पे। लाइटनिंग के टाइम पे क्या होता है, जब थंडर एंड लाइटनिंग, रिमेंबर लाइटनिंग आपको दिखती है, ठीक है, उस वक्त सचमुच में एयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाती है, बट दोज कंडीशंस आर वेरी एक्सट्रीम। वो कंडीशंस नॉर्मली बन नहीं सकती हैं, वो बहुत ही मुश्किल से बनती है। जब बनती है यू ऑलवेज सी द लाइटनिंग, है ना। तो वो कंडीशंस वी विल बी स्टडिंग दैट इनटू द लाइटनिंग एंड थंडर चैप्टर। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से लाइटनिंग एंड थंडर में ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ा है जब हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा था, हमने तब ये चीज़ पढ़ी थी। कैसे पढ़ी थी वो मैं बताती हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच अपोजिट चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द नियरर एंड अ सिमिलर चार्ज ऑन द फार्दर एंड ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब हम इंडक्शन वाला चार्ज कर रहे थे, चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस को पढ़ रहे थे, तो एक अनचार्ज बॉडी थी, ठीक है, उसके पास हम एक चार्ज बॉडी को लेकर आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, टच नहीं करवा रहे हैं क्योंकि हम इंड्यूस करना चाहते हैं। तो क्या होता था, मान लो ये जो बॉडी हम लेकर आ रहे हैं वो प्लस चार्ज्ड है ना, तो इस पे क्या होगा, ये जो अनचार्ज बॉडी थी इसके पूरे के पूरे चार्जेस किस तरह बिहेव करेंगे, नेगेटिव वाले सारे पॉजिटिव के पास जाने की कोशिश करेंगे और पॉजिटिव वाले दूर हो जाएंगे, राइट। तो बेसिकली ये जो चार्ज बॉडी है जिसको मैं पास लेके आ रही हूँ, इस बॉडी का तो कोई भी चार्ज का नुकसान नहीं हुआ ना, उस पर जितना चार्ज था अभी भी उतना ही है ना, क्योंकि टच तो हम करवा ही नहीं रहे, फ्लो तो हम करवा ही नहीं रहे। तो यहाँ पे मेन काम यही है कि हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन में इस तरीके से करते हैं कि कोई भी चार्ज जो है वो गुम नहीं होता, चेंज नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो मेन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है, और राइट, नो मूवमेंट ऑफ चार्ज, कोई चार्ज लॉस नहीं होता, ठीक है। अब देखो स्पार्किंग, स्पार्किंग सुना है तुम लोगों ने, क्या होता है, जब तुम कभी वुलन क्लोथ्स को जब टेक ऑफ कर रहे होते हो तो उस वक्त आपको चिट चैट आवाज़ सुनाई देती होगी, दैट इज ऑल्सो स्पार्किंग। और कई जगह पे स्पार्किंग होता है, ठीक है, कई जगह पे लाइक डिफेक्टिव स्विचेस में भी होता है, राइट। तो मेक श्योर यू डू नॉट डू दैम, उनको रिप्लेस कर दो अगर तुम्हारे घर में कोई भी डिफेक्टिव स्विच हो तो, ठीक है। देखो स्पार्किंग में क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन द टू चार्ज बॉडी विद स्पार्क एंड चिट चैट साउंड ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ एयर इज बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड स्पार्किंग। जब कभी भी एक बॉडी दूसरे बॉडी और इन दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन होता है चार्ज का, उस वक्त एयर के अंदर से देयर इज अ स्मॉल साउंड, वहाँ पे कुछ आयनाइजेशन हो जाता है एयर का, ड्यू टू विच यू कैन हियर द चिट चैट साउंड ऑल्सो एंड यू कैन इवन सी द स्पार्किंग समटाइम्स, ठीक है। सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम वन आफ्टर द अनदर ज्वाइन करते हैं, जिसके अंदर से सेम करंट फ्लो होता है, जैसे हमने कंडक्टर्स बनाए थे, सर्किट्स बनाए थे, राइट। तो जो सर्किट हम बनाते हैं वो 1 to 1 कनेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इन सीरीज, 1 by 1 by 1, ठीक है। एक लाइन में ही होता है वो, है ना, भले ही हमने लाइन को मोड़ दिया है बट वो लाइन में ही रहता है, ठीक है। सो दैट इज द सीरीज कनेक्शन, ठीक है। उसके अलावा देखो तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए, फ्यूज़ पता होना चाहिए। फ्यूज़ तो मैं तुम्हें बता चुकी ना क्या होता है ना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वापस बता देती हूँ। फ्यूज़ होता है एक छोटा सा पीस ऑफ वायर जो कि ऐसे मटेरियल का बना होता है जिस मटेरियल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जिस मटेरियल का लो रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब करंट का वैल्यू ज़रा सा भी ज़्यादा हुआ नहीं कि वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। किसका बना होता है, 33% टिन और 67% लेड का बना होता है। तो ये एक एलॉय होता है जिसके अंदर लेड और टिन को मिक्सअप हम लोग कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज दैम। तो बेसिकली ये जो है फ्यूज वो किस काम में आता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बचाने के काम में आता है। कैसे बचाने के काम में आता है, हम क्या करते हैं, लेट्स से तुम्हारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो 5 एम्पियर के करंट पे काम करते हैं, ठीक है, और तुमने क्या किया, तुमने एक फ्यूज यूज करा है 5 एम्पियर का, सेम, ठीक है, जो भी करंट यूज हो रहा है उसी का हमने फ्यूज यूज किया है। अब अगर इस 5 एम्पियर करंट में से 1 एम्पियर करंट भी ज़्यादा आ जाए, करंट गलती से मान लो ज़्यादा करंट आ गया, 6 एम्पियर करंट आ गया, तो ये जो वायर है ये मेल्ट हो जाएगा और आगे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 5 एम्पियर पे वर्क करते थे उनको 6 एम्पियर करंट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो बच जाएंगे। और अगर उनको 6 एम्पियर करंट मिल जाता तो वो तो बर्न आउट हो जाते ना, राइट, वो ख़राब हो जाते। तो इस तरीके से ये फ्यूज़ जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रक्षा करता है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करता है।
कुछ इस तरीके का दिखता है फ्यूज वायर, ठीक है, ये फ्यूज है वैसे तो। अब देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जो चार्ज है वो तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो तुम बना नहीं सकते, तुम सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इसको रिवर्स मतलब पहुंचा सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, राइट, बट यू कैन नॉट क्रिएट चार्ज, तुम चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, तुम चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यू कैन ऑलवेज मेक श्योर कि जो चार्ज है वो वन बॉडी टू अनदर बॉडी मूव कर सकते हैं, ऑलराइट, वी कैन मेक दैट मूव, ऑलराइट। दो वायर अगर लेट्स से कि क्या हो, दो पैरेलल वायर्स हैं और उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है सेम डायरेक्शन में, सो दे विल गेट व्हाट, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो, ठीक है, ये चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब देखो हमें ये बात पता है कि भाई एक एटम के अंदर जो है तीन चीज़ें हैं, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, राइट, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल थिंग्स, राइट, सो यू नो ऑल दीज, एंड हम लोग बोलते हैं कि एक एटम न्यूट्रल होता है, राइट, क्योंकि नॉर्मली की बात करें, नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ऐसा नहीं गायब हो गया है, न्यूट्रलाइज का मतलब एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देना, ठीक है, तो दैट्स व्हाई वो इट इज एटॉमिक न्यूट्रल, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। और दो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आई टोल्ड यू ऑर्बिट्स में चारों तरफ घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, थोड़े फ्री होते हैं, जिसकी वजह से वो चक्के एक जगह में दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू शुड नीड टू नो एंड डेफिनेटली यू शुड नीड टू नो। अब देखो मैं तुम्हें एक और चीज़ बताती हूँ, अगर हम क्या करें, वैसे तुमने 7th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा होगा, उसमें हम क्या करते हैं, हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक आयरन नेल के ऊपर लपेट देते हैं, उसको रैप अप कर देते हैं एंड वी कनेक्टेड टू अ बैटरी, एंड व्हेन वी डू दैट, वो जो नेल होती है, आयरन नेल होती है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो जैसे ही आप करंट ऑन करोगे वैसे वैसे क्या होगा, वो आयरन नेल जो है मैग्नेट बन जाएगी, और जैसे ही आप क्या करोगे, करंट ऑफ करोगे, वो जो है आयरन नेल वो मैग्नेट बनना बंद कर देगी। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। तो देखो अगर हम क्या करें, सॉफ्ट आयरन कोर को क्लोज कॉइल कैरिंग करंट में रख दे, मतलब एक करंट है उसके मतलब उसको तुम कॉइल करके एक बड़ा सा बढ़िया सा सिलेंडर बना लो और उसके अंदर आप कोई आयरन का कोर रख दो, अगर आप ऐसा कर देते हो तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्या है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। इसका जो स्ट्रेंथ है वो कैसे बढ़ेगा, उसका स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, आप क्या करो, पूरे टर्न्स को बढ़ा देते हो, ठीक है, ऐसे जो टर्न्स हो रहे हैं उसको बढ़ा दो तो बढ़ जाएगा, करंट अगर आप इंक्रीज कर देते हो तो बढ़ सकता है, सॉफ्ट आयरन कोर अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, स्ट्रॉन्गनेस है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि क्या कर रहे हो, आप एक मैग्नेट को क्या कर रहे हो, पास लेकर जा रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, एक कॉइल के पास लेकर जा रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, तो आपको पता है कॉइल के अंदर अपने आप करंट जनरेट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। Heat generated in a wire is double in half when both the radius and length of the wire is double in half. तो basically what happens, देखो अगर जो वायर है, अगर आप उसकी लेंथ रेडियस, ठीक है, जो उसका रेडियस है, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल तो उसका रेडियस, राइट, एंड उसका लेंथ, ठीक है, अगर आप उसको डबल कर देते हो या फिर अगर आप उसको हाफ कर देते हो तो जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट जनरेशन है वो भी डबल ऑफ हाफ हो जाएगा, ठीक है, ये उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और देखो कितना हीट प्रोड्यूस होगा किसी भी वायर में एज अ हीटिंग इफेक्ट, तो वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, नंबर 1 नेचर, कैसा नेचर है मटेरियल का, अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है, और अमाउंट ऑफ टाइम, कितनी देर के लिए उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिससे आपको पता चलेगा। ऑलराइट, अब देखो MCBs जो होते हैं वो आजकल यूज़ होता है, फ्यूज़ की जगह पे हम MCBs यूज़ करते हैं, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है, तो ये अपने आप ऑफ हो जाते हैं, दीज आर रीयूजेबल, क्योंकि देखो फ्यूज़ में क्या होता है, तार मेल्ट हो जाता है, वायर है वो मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बार अगर आपने फ्यूज़ यूज़ कर लिया तो आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाते हैं, राइट। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स में ऐसा नहीं होता है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्विच बस ऑफ हो जाएगा, तो यू कैन ऑन इट एंड यू कैन री यूज़ इट, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन।
अब देखो मैं आपको एक और इलेक्ट्रोस्कोप बताती हूँ जो कि बहुत इजी है बनाना, ठीक है, आप भी बना सकते हैं. एंड दिस इलेक्ट्रोस्कोप इज सो चीप, ठीक है, चीप इन द सेंस इट इज इकोनॉमिकली चीप, राइट. Pit ball electroscope is a cost-effective instrument where the presence of static electric charge is detected using light pit balls threaded to a strand. तो देखो ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये एक स्टैंड है, आपने क्या किया है, थ्रेड से दो पिट बॉल्स को अटैच कर दिया है, ठीक है. ये जो पिट बॉल्स होती है बहुत ड्यूरेबल होती है, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल प्लास्टिक की बॉल से थोड़ा सा हैवियर होती है, तो दे कैन डेफिनेटली मेक श्योर कि भाई ऐसा हो. अब क्या कर सकते हो आप, इसमें से डिटेक्शन कर सकते हो चार्ज का कि भाई किस तरीके से कितना चार्ज है एक बॉडी पर, ठीक है, तो ये आप डिटेक्ट कर सकते हो. मेनली इलेक्ट्रोस्कोप इसी काम में आते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से जो है हमने अपना पूरा का पूरा लेक्चर जो है पढ़ लिया है एंड वी हैव स्टडीड आवर होल चैप्टर. In the next lecture we are going to revise our whole chapter. Make sure you do that too. Alright, तो पहले भी आप रिवाइजन कर लो, मेरे साथ भी रिवीजन कर लेना और उसके बाद भी रिवीजन कर लेना, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एंड देन दैट्स इट, आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा. Alright, so that is what I want to say to you all. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos basically. And now do the homework. Alright, make sure you comment if you have any query, okay, and that is a good thing also. So thank you so much.